Welcome to Wellbeing Wednesdays with Harbinder Narula on BW Wellbeing World. Ustad Kamal Sabri, a maestro of the Sarangi, transcends mere musical performance to weave intricate tales through the strings of this instrument. His melodies evoke a range of emotions from serenity to passion, leaving listeners spellbound by the sheer depth of his artistry. Through his mesmerizing compositions, he not only connects with his audience but also opens a gateway to the transformative power of music on the journey of well being. How does he do that? Let's find out by Ustad Kamal Sabri ji himself. Kamalji, welcome to BW Wellbeing World. We keep listening to music, and all of us sometimes feel good. And many a times, music is a solace for us. Uh, when we are in our sad moments. तो आपका म्यूजिक जोन सा है, it is also known to invoke a lot of emotions. So we thought you could be the best person to talk about how music can be a form of expression and also can help you deal with your emotions. But पहले तो शुरुआत करते हैं कि थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएंगे कि आपकी म्यूजिक की जर्नी कैसे शुरू हुई थी and how has that evolved you as a person that you are today? So, as I was born in a family of musicians, my father, the great legendary Ustad Sabri Sahab, who performed for India's independence in 1947. And he was one of the favorites of Sandeep Jawaharlal. He was a great musician, and he worked for All India Radio New Delhi for almost 50 years. He served there as a musician. And he brought Sarangi out of oblivion and brought it to the world and made world aware about Sarangi. And he was one of the first professor of Indian music at Washington University in Seattle. And he was the sixth generation of our gharana, which is the foremost gharana of Sarangi in India. And he kind of taught Sarangi to many of his disciples who are working in many different universities in the world and teaching Indian music. Many of his students, I think most of the Sarangi players are his students around the globe. And he was a kind of person who was not only a great musician, but also a great human being. A person who knew how to balance life with work and family and personal needs. So he taught me Sarangi, and I was very fortunate to have learned from him. And then I took this challenge because Sarangi is not a kind of instrument which is enjoyable or which is enjoyed by everyone, because it comes from the background of classical music. And classical music is always for a certain class. जैसे कि हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं, जो शास्त्र में जैसा लिखा है और वही हमने उसको फॉलो करना है. So there is always a kind of a line between pop music and classical music. ये मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई. फिर मेरे I had a small sarangi, which I am the seventh generation of the family that has been playing this mystical, amazing instrument, and it is considered to be the closest to human voice. सारंगी जो है, उसकी जो साउंड होता है वो इंसानी आवाज के सबसे ज्यादा नजदीक तर माना जाता है, नजदीक तरीन. और ऐसा कोई वाद्य यंत्र नहीं है जो सारंगी को, क्योंकि सौरंगी कहा गया, एक ऐसा वाद्य यंत्र जो जिसमें से आप भिन्न प्रकार का संगीत निकाल सकते हैं. तो whether it is classical genre such as धुरपद संगीत, ख्याल music, ठुमरी, कजरी, चैती, folk song, ghazal, bhajan, qawwalis, and nowadays it's also venturing into jazz music, world music.
So this is the kind of background I had, and God's grace, I've been working hard, and I've been traveling and performing every corner of the world. Right. Yeah. And आपकी जिंदगी में अभी, like you said, you're the seventh generation of this gharana, and you're blessed to have been taught by the maestro himself, and who is also your father. And how has music helped you evolve? Because आप तो जब, when you were born, you were a part of the music all around you, जी. But do you think it has impacted your life and that has turned you into a person that you are today? Uh, and music has a role to play in your life. Of course, it is. It is. You become a matured person, a different personality. Of course, I was when I was a child, it was a different. I was a different person that time. फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होते हैं, चीज़ों को समझते हैं. म्यूजिक भी वैसे ही आपकी मेच्योरिटी के पार्ट हो जाता है. Your music becomes very mature, is more impactful, and उसका जो गहराई है, जो डेप्थ है, वो और बढ़ जाती है. एंड क्लासिकल म्यूजिक में तो आपको उस्तादी जब मिलती है, जब आप थोड़े मेच्योर हो जाते हैं. So, although I've been playing from the age of 6, 7, but I was fortunate to have a teacher like my father, who was teaching me the best knowledgeable Sarangi legend. But जो मेरी अपनी उसमें सोच थी, वो तो it took some time, and I became a musician from the standard. लेकिन जो आप एक साथ वाली जो चीज होती है, वो आपको दुनिया देती है जब आपका काम उनको लगता है कि ये इस लायक है, और फिर आप उस्ताद बनते हैं, आपको पता लगता है. और because I had a teacher like my father, so I was very fortunate to become a musician on a very early stage. कहते हैं ना कि म्यूजिशियन तो बन सकते हैं, लेकिन एक वर्ल्ड लेवल का म्यूजिशियन बनना वो मेरे लिए इजी हो गया जल्दी, क्योंकि मुझे टीचिंग अच्छी मिली और मुझे एक्सपीरियंस्ड टीचर मिले, जिनको पता था कि किस मकाम पे कैसे क्या फैसला लेना है और क्या अप्रोच रखनी है एज ए म्यूजिशियन. तो ये मेरी अप्रोच रही, और उसकी वजह से मैं बहुत जल्दी एक वर्ल्ड लेवल का आर्टिस्ट बन गया, म्यूजिशियन. जी. मेच्योरिटी की आपने बात करी, तो एक तो होता है टीचर अच्छा मिलना, बट दैट टीचर taught many students, many disciples, but not everyone takes it to the next level or to the world level, like you said. It requires a lot of maturity in receiving that education and knowledge as well. So I mean, वहाँ पे मेच्योरिटी बहुत रिसीवर की भी इम्पोर्टेंट हो जाती है. कमाल जी, आपने अभी जैसे बताया कि सारंगी, जिसको हम स्वरंगी भी बोलते हैं, इट्स अ क्लोजेस्ट टू द ह्यूमन वॉइस, एंड म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्वोकिंग इमोशंस. हमने उसके बारे में बात करी थी. तो आपके ओपिनियन में, how do you think music can help in overcoming anxiety that leads to depression? I mean, हम जब stressed होते हैं तो हम कई बार म्यूजिक का सहारा लेते हैं. तो म्यूजिक और स्ट्रेस बस्टिंग में क्या रिलेशनशिप है, कैसे होता है? मैं नहीं कहूँगा कि हर म्यूजिक एकदम स्ट्रेस बस्टिंग होता है या क्योर्स एंजाइटी, स्पेशली इंडियन क्लासिकल. जो उसमें जो डेप्थ है, उसके जो एक एक सुर की जो सोच है, वो बहुत ही एक आपके एक पॉजिटिव अप्रोच के लिए बड़ी ज़रूरी है. जैसे कि आप एक ऐसा म्यूजिक सुने जो स्टेज पे बंदे चढ़े हुए हैं और वो शोर मचा रहे हैं, दे आर ड्रगी पीपल. It can give you a pleasure for a moment, but it won't sustain for a while. उसके बाद आप घर जाएंगे, again because you're seeing your role models are
musicians who are playing and who are taking drugs and they are not into the right kind of, to me it's not the right way of living life. तो मेरे ख्याल से कि आपका हमारा जो शास्त्रीय संगीत है खासकर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपको एक अच्छा इंसान बनाने में, एक अच्छा सोच लाने में, एक पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज इट कनेक्ट्स टू गॉड. एंड मैंने ये एक आई वाज गिवन अ चैलेंज टू वर्क फॉर तिहाड़ जेल इन दिल्ली, एंड आई टॉट Indian classical music there to the inmates. So I had experienced that as well. वहाँ पे मुझे बहुत ऐसे inmates मिले जिन्होंने जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियाँ जो वो करना नहीं चाहते थे या उसमें किसी तरह अनविलिंगली उस चीज़ में फंस गए और उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं. तो वो उस प्रॉब्लम में जब होते हैं तो उनको क्या चीज़ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कैसे इम्पैक्ट करी है वो मैंने एक्सपीरियंस किया, और उनको कैसे नेगेटिविटी से उनकी नकारात्मक सोच से कैसे उनको सकारात्मक पॉजिटिव मस्बत सोच लेकर आया. वो म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है. उसके अलावा मेरे पिताजी जब जवाहरलाल नेहरू जी बीमार पड़े तो माय फादर यूज्ड टू वर्क एट ऑल इंडिया रेडियो एंड he was asked that he should go and perform for Jawaharlal Nehru. He used to go and play for him. क्योंकि उनको बोला गया था जवाहरलाल नेहरू जी को डॉक्टर्स के जरिए कि जब आपकी जो बीमारी है वो दवाई से ठीक नहीं होगी, बट इफ यू लिसन टू स्वीट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स that definitely will affect on your body. So some musicians were appointed there. So one of them was my father. कि सारंगी म्यूजिक आप सुनिए. तो सारंगी म्यूजिक का इम्पैक्ट उन्होंने ये हुआ कि उन्हें सारंगी ज़्यादा पसंद आई और वो फिर रेगुलर इनवाइट माय फादर टू परफॉर्म. तो ये शास्त्रीय संगीत की ताकत है कि कैसे एक बीमार आदमी को ठीक कर सके या कैसे एक गलत आदमी को सही राह दिखा सके. तो ये हमारे शास्त्रीय संगीत में ही ये चीज़ आपको मिलेगी. मैंने और किसी के संगीत के बारे में अभी तक ऐसा कुछ नहीं सुना, लेकिन शास्त्रीय संगीत के ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे एक्सपीरियंस मैंने सुने भी हैं और मैंने खुद भी किए कि कैसे कैसे लोगों की जिंदगी में वो चेंज ला सकता है. ये बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स आपने दिए जो रियलिटी में खुद देखे हैं आपने. सो दैट इज वेरी इट्स नॉट कि इतनी सुनाई बात है. कमाल जी, बहुत लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, उनका दिन बीत जाता है. आई मीन दे आर वेरी वेरी ओवरटली आउटसाइड एंड दे आर वेरी कम्युनिकेटिव. बट बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स होते हैं जिनको जो ज्यादा बातें नहीं करते, जो ज्यादा लोगों से गुफ्तगू नहीं करते, बट दे टेक ऑन टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट, म्यूजिक, डांस टू बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. हाउ डज दिस वर्क? उनके अंदर ऐसा क्या होता है? कैसे लोग म्यूजिक या पेंटिंग या डांस के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं? ठीक है, जब हम म्यूजिक कर रहे होते हैं तो म्यूजिक जो है वो आपके अंदर बॉडी से, सोल से आ रहा होता है. तो जैसा कि आपकी सोल होगी, जैसा आपकी रूह होगी, वही वो आप संगीत निकालेंगे और सामने वाले जो आपके जरिए उस संगीत से आनंद ले रहे हैं, तो अगर वो उनके मन तक, क्योंकि कहते हैं कि नगमा वो नगमा है जो रूह सुने और रूह सुनाए. तो जब आपकी ये जो जर्नी है एक रूह से दूसरी रूह की ओर जाके और उस संगीत का इम्पैक्ट होता है, जब वो उस रूह को खुश करती है तो डेफिनेटली उस रूह में एक जागृति पैदा होती है आपके म्यूजिक के प्रति, और आपको वो म्यूजिक अच्छा लगता है, आनंद देता है, और आप उस म्यूजिक से या तो इनवर्डली आप बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं और चाहते हैं कि यार ये म्यूजिक फिर मैं दोबारा सुनूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इससे एक आनंद, एक अलग किस्म का आनंद मुझे मिल रहा है, एक शक्ति मिल रही है, एक ऊर्जा मिल रही है कि जब मैं जैसे पढ़ने बैठता हूँ, साथ में मेरे अगर शास्त्रीय संगीत में आलाप चल रहा हो, ध्रुपद संगीत चल रहा हो किसी अच्छे आर्टिस्ट का,
तो मुझे वो कंसंट्रेट करने में और अच्छा लगता है और इजी हो जाता है। तो ये सारी चीजें, it's just one example that I'm giving. There are thousands of examples like this. कुछ लोगों को शास्त्रीय संगीत में इसलिए भी मजा आता है क्योंकि he gets his soul pure, क्योंकि वो जो सुर लग रहा है, जो सच्चाई होगी उस सुर में तभी लगेगा। अगर से आप गलत सुर लगाएंगे तो वो कभी इम्पैक्ट नहीं करेगा। आप जैसे ही गलत सुर होगा आप एकदम विचलित हो जाते हैं, यू बिकम रेस्टलेस, ओ व्हाट द हेल इट इज, व्हाट इज इट ट्राइंग टू, समथिंग इज नॉट राइट। तो उसी को सच्चा सुर कहते हैं। और स्वर जो है वो ईश्वर होता है, अगर सच्चा लग रहा है, क्योंकि ईश्वर भी कुछ ऐसा, ये ऐसा संगीत है जो आप जब आंखें बंद करते हैं जब आपको दिखाई देता है। कुछ चीजें होती हैं जो आप आंखें खोल के देखते हैं, तो ज्यादातर ऐसा ही है दुनिया। लेकिन जब ये अंतरात्मा तक आपने जाने की जर्नी है, और अंतरात्मा के जब आप जाते हैं तो वो आंखें बंद करके चीजों को देखते हैं, तो वो जब आपको नजर आने लगता है तब आप तो जो वो दूसरे के संगीत का इतना इम्पैक्ट होना चाहिए कि वो आपको संगीत जब बज रहा है तो मन कर रहा है कि मैं आंखें बंद करके इसका आनंद, क्योंकि मुझे आंखें बंद करके इसमें आनंद ज्यादा आ रहा है। तो इंडियन शास्त्रीय संगीत माना जाता है कि ये एक ईश्वर का संगीत है, और ये एक ऐसा संगीत है जिसके जो आप अगर सही तरीके से संगीत हो रहा है और सही तरीके से आप सुन रहे हैं, इट कैन चेंज योर personality, it can change your way of thinking, it would have a kind of impact that will change you as a person. तो क्या आपको लगता है बहुत सारे बच्चे जो उनसे हाइपर एक्टिव होते हैं, जिनको ADHD भी माना जाता है, और उनको बोला जाता है कुछ ना कुछ ऐसे करिए जिससे उनको काम महसूस हो, तो आपको लगता है कि म्यूजिक एक जरिया बन सकता है ऐसे बच्चों के लिए टू help them focus and help them become calm? Absolutely, sir, because I do a lot of concerts for schools, right, organized by Speak Mackay. तो स्कूल में जब हम जाते हैं तो आजकल जैसे एक स्ट्रेसफुल लाइफ है, बहुत ज्यादा टेंशन भरी जिंदगी है, और उसमें जो हमारा शास्त्रीय संगीत का इम्पैक्ट होता है वो यही है कि एक फोकस करने में और वो हेल्प करता है। जैसे हम एक म्यूजिक का एक क्लास होती है, एक म्यूजिक टीचर होता है, उसको बोल दिया जाता है जी ग्रुप सॉन्ग तैयार करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं कि नेशनल डे आ रहा है या ये स्कूल डे आ रहा है। तो उसका जो एक फर्ज होता है, एक उसका जो वर्क है, वो सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि वो बस नेशनल डे आ रहा है तो कोई गाना तैयार करा दे। इसका काम होना चाहिए कि जैसे पूरी दुनिया में आज इफ यू गो टू एनी कंट्री, यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन स्कूल, they will definitely have a school teacher who will definitely teach them classical western music as well. उसमें वो आपको एक इंस्ट्रूमेंट वायलिन सिखाएंगे या पियानो सिखाएंगे, ये जो भी उनका इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन टीचर आपको वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में जो सिस्टम है पढ़ने का म्यूजिक को वो भी सिखाएंगे। हमारे स्कूलों में अक्सर ऐसा नहीं होता है, बहुत कम ऐसे स्कूलों में जहाँ शास्त्रीय संगीत की भी तालीम दी जाती है। लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि आप जब म्यूजिक क्लास में आए तो कम से कम 5 से 10 मिनट आप बैठ के योग की अवस्था में ध्यान लगाएं शास्त्रीय संगीत के साथ, ताकि आपके अंदर एक सोच अच्छी पैदा हो, प्योर हो आपकी सोच। वो बचपन से शुरू होना चाहिए। इट डजंट मैटर इफ यू वांट टू बी अ म्यूजिशियन और नॉट, लेकिन एक अच्छे इंसान बनने के लिए शास्त्रीय संगीत, तानपुरा म्यूजिक जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, और वो बच्चों को जरूर सुनना चाहिए। उससे उनके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आता है और वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, क्योंकि माना जाता है कि बेस्ट मेडिटेशन वही है जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के साथ आप मेडिटेट करते हैं। कमाल जी, आज की डेट में बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे जो म्यूजिशियंस हैं जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में ट्रेनिंग ली है, वो ट्रेडिशनल रूट्स ऑफ म्यूजिक में बहुत जुड़े हुए हैं। एंड माय क्वेश्चन टू यू इज, अभी टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, AI ड्रिवन म्यूजिक भी है, सो हाउ डू यू बैलेंस द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ ह्यूमन एक्सप्रेशन
and the technological innovation of AI generated compositions that we are seeing today? इनमें बैलेंस कैसे create करें? देखिए, जिस तरह से दुनिया जा रही है, थोड़ा बहुत आपको उस वक्त के साथ भी चलना पड़ता है। अगर आप वक्त के साथ में चलेंगे तो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। और ज़माना जब से शुरू हुआ है, जब से यह दुनिया शुरू हुई है, एक जनरेशन जो आपसे बड़ी है वो यंग जनरेशन के साथ चलिए तो उसमें एक अलग ही मज़ा आया है। तो ट्रेडिशन का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आप ट्रेडिशन को लेके और ट्रेडिशनल संगीत ही बजाएं। आप एक कलाकार हैं, आपकी कलाकारी ये होनी चाहिए कि आपको जो भी चैलेंज मिले उसमें आप अपनी कलाकारी, अपनी उस्तादी, अपनी म्यूजिशियनशिप दिखाएं। तो हमारे लिए भी यही होता है कि मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं सारंगी को लेकर के। सबसे पहले मैंने डांस ऑफ द डेजर्ट, मेरी एक एल्बम थी जो बड़ी हिट हुई थी, उसमें मैंने राजस्थान पे जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है उसको लेके आज के संगीत के साथ जोड़ के मैंने उसको किया। उसके बाद सारंगी फंक के, सारंगी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि रोने से या बिकॉज इट कैन डिपिक्ट्स मैनी डिफरेंट एक्सप्रेशन, मैनी डिफरेंट इमोशंस। तो उसके साथ साथ सैड इमोशंस या जो एक दुख का संगीत है, उसके साथ साथ इसमें हैप्पी म्यूजिक भी आप उतने बजा सकते हैं जितने दुख का। So because I was really not happy that the people have this kind of image of Sarangi where some big minister dies in India and there is a Sarangi player who's paying tribute to him throughout the day. Different Sarangi players are brought onto the TV where they're playing and they're just mourning through their Sarangi music. मैं ये हटाना चाहता था और इस वजह से मैंने खुशी के संगीत से सारंगी को कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि इसका नाम सौरंगी है। तो नॉट ओनली वन काइंड ऑफ म्यूजिक यू कैन प्ले ऑन इट, बट यू कैन प्ले हैप्पी म्यूजिक टू। तो मैंने इसके करके डांस का म्यूजिक, डांस ऑफ द डेजर्ट, सारंगी फंक और सारंगी रीडिफाइंड जैसी एल्बम्स मैंने की। और उसमें मुझे बड़ी कामयाबी मिली, गॉड्स ग्रेस। और मेरी ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सारंगी के लिए और म्यूजिक के लिए कि that I brought that element to a layman, in music. I think it could be a very beautiful thing because मेरे को म्यूजिक की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन म्यूजिक सुनना बहुत पसंद लगता है और अच्छा लगता है। लेकिन मेरे को लगता है म्यूजिक सुनने से ज्यादा म्यूजिक फील करा जाता है अगर अच्छा म्यूजिक हो, आपको छू जाए तो। हाँ, एंड दैट इज वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल। यू नो, उस मोमेंट में आपके जो इमोशंस आपने शायद दबाए रखे हैं और आपको पता भी नहीं है आपने दबाए रखे हैं, वो निकल के आ जाते हैं। बैठे बैठे म्यूजिक सुनते कई बार रोना आ जाता है और आपको लगता है कि यार मैंने क्यों दबा के रखा था ऐसा, या फिर कुछ अंदर से खुशी मिलती है या कुछ एक्सप्रेस करने का मन करता है। सो आई थिंक म्यूजिक इफ इट इज फेल्ट, जैसे आपने बोला कि रूह से निकलता है और रूह को सुनाई देता है, सुनता है, ठीक है ना। कमाल जी, माइथोलॉजी में ये माना जाता है कि हमें बताया गया है एज वेल व्हेन वी वर ग्रोइंग दैट म्यूजिक हैज द एबिलिटी टू ब्रिंग रेन एज वेल। Are there any specific ragas, melodies from the Indian classical tradition that you find particularly very effective in evoking moods and fostering cognitive engagement? Of course, sir. There are ragas like that. जैसे कि राग मेघ है, मल्हार है, वो स्पेशली सीजनल रागास होते हैं जो during the monsoon time you can play or sing those ragas. लेकिन ये कि उसके जरिए से आप बारिश लानी है, जैसे अब गर्मी हो रही है 45 डिग्री टेम्परेचर, और आप किसी आर्टिस्ट को बोले जी जरा बारिश तो कराओ, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसे ऐसे म्यूजिशियन हुए हैं, जैसे मियां तानसेन जी, द ग्रेट म्यूजिशियन, द ग्रेट म्यूजिकोलॉजिस्ट, जिन्होंने ऐसा करके दिखाया है। और अक्सर अभी भी ऐसा रैंडमली भी हो जाता है कि कोई अगर म्यूजिशियन अगर मेघ गा रहा है या मल्हार गा रहा है और उसके सुर में इतनी शक्ति पैदा हो गई तो इट कैन डेफिनेटली ब्रिंग रेन। और हमारे संगीत जो है वो बड़ा इम्पैक्टफुल संगीत है, बहुत असरदार संगीत है।
तो मालिक अगर खुश हो जाए तो डेफिनेटली 40-45 डिग्री में भी वो आपको बारिश ला के दिखा सकता है। कमाल जी, आपका क्या मानना है कि म्यूजिक हर इंसान सीख सकता है, या Absolutely. कुछ लोग हैं जिनके अंदर म्यूजिक सीखने का जज्बा होता है और बाकियों में उनके बस की नहीं है? देखिए, आपका क्या ऐसा है कि थोड़ा सा टाइम अगर आप संगीत में रह लेंगे तो डेफिनेटली आप संगीत कर सकते हैं। जैसे आप इंग्लैंड में रह रहे हैं या ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ हिंदी कम बोली जा रही है, अंग्रेजी ज़्यादा बोली जा रही है या फ्रेंच ज़्यादा बोली जा रही है, डेफिनेटली आप फ्रेंच तो बोलने लगेंगे, लेकिन जो उसकी एक तरीके की फ्रेंच है या इंग्लिश है, जो जो जब तक उसका प्रॉपर तालीम आप नहीं लेंगे वो उस हिसाब से आप नहीं कर पाएंगे। तो म्यूजिक का भी ऐसे ही है कि आप, म्यूजिक तो सभी के अंदर होता है, जो आप बात कर रहे हैं, हर कहते हैं गाना और रोना तो सबको आता है, लेकिन जब आप उसकी तालीम लेंगे तो वो एक क्लास अलग होगी कि आपने इसकी शिक्षा लेके आपने इसको बोलना शुरू किया या गाना शुरू किया और आप एक ऐसे गा रहे हैं, वो अलग चीज़ है। वो भी एक आप इंजॉय करने के लिए, अपने आनंद लेने के लिए गा रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो हर किसी को संगीत आता है, नोइंगली और अननोइंगली हर आदमी के अंदर संगीत है, क्योंकि हमारा जो दिल की धड़कन है वो भी एक संगीत है, वो बीट में चल रही है। अगर उसकी बीट की फर्क अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसका ईच जो धड़कन है, जो ईच बीट है, वो उसका वक्फा जो है ना, वो हमेशा बराबर आएगा, और बराबर आता है तो हमारी जिंदगी की जो जो चाल है, जो हमारा लाइफ है वो सही चल रही है। और ऊपर नीचे हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाती है। यही संगीत है। यह बहुत बड़ी बात कही है कमाल जी आपने, कि म्यूजिक तो हर एक में बसा हुआ है। इसका बसा हुआ है, हर एक की जिंदगी एक सुर और ताल के मेल से ही चल रही है, चल रही जो है, शायद हमारे को समझ आती है या नहीं आती है, बट वो नहीं है, आती रियलिटी है। रियलिटी। तो कमाल जी, मतलब कैन आई रिक्वेस्ट यू टू प्ले समथिंग फॉर आवर व्यूअर्स, और इज इट? मैं फिर इंस्ट्रूमेंट मुझे मेरे मेरा अभी नहीं है, लेकिन मैं एक चीज गा देता हूँ आपके लिए, जी अगर आप। बिल्कुल बिल्कुल सर। गम धा पा, ये सुबह का समय है तो एक राग है सुबह के लिए, राग सर प गम द सा, जग कर तार तुम्हें है, बन से बजावत श्याम, जग कर तार तुम्हें है, बीच भंवर में मोरी नैया, तुम ही करोगे बेड़ा पार, जग कर तार तुम्हें होना। तो ये बहुत मैंने बहुत ही, आई मीन बहुत ही उम्दा, बहुत मजा आया। सारंगी की क्लिप आपको मिल जाएंगे काफी ऑनलाइन भी, जी अगर आप जी जी चाहें। जी। कमाल जी, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, मतलब हम सुबह सुबह मिले, लेकिन शुक्रिया। बहुत और बहुत आपसे लग ही नहीं रहा कि पहली बार ही शायद आपसे बात हो रही है। बहुत मजा आया। आपसे भी और बात करके आपने मुझे बड़ा आनंद और आया। आपने जो बताया सारंगी और सौरंगी, जिसको हम बोलते हैं, और कैसे आपने सिर्फ, हमने सुना था कि म्यूजिक इम्पैक्ट करता है लोगों की जिंदगी को, आपके इमोशंस ट्रिकल करता है, लेकिन आपने एग्जाम्पल्स दिए कि कैसे आपने तिहाड़ जेल में जाके जब इनमेट्स को म्यूजिक सिखाने की कोशिश करी, तो कैसे कुछ लोग जो जिनका नेगेटिव माइंडसेट था, उसको हम पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ ट्रांसफॉर्म कर जी पाए। ये जी। बहुत बहुत इम्पैक्टफुल यूज ऑफ आर्ट, जिसको मैं बोल सकता हूँ। सिमिलरली आपने जब बताया कि आपके आपके पिताजी, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू जब बीमार थे उनके लिए म्यूजिक प्ले किया, तो कैसे उनको रिलीफ मिला, सूदिंग फील किए। हम्म, एंड
जो चीज मेरे जहन में बैठ गई है आपकी बात सुन के, वो और वो मैं शायद फील करता हूँ लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बट आपने वो एक्सप्रेशन दे दिया है कि नगमा वही है जो रूह सुने और रूह सुनाए. जी जी That is so beautiful. I mean, you know, I think this will stay with me for the rest of my life. थैंक यू सर. कमाल जी, थैंक यू सो मच समय शुक्रिया, निकालने के लिए. आपसे बात करके इंडीड बहुत बहुत मजा आया, और Thank मैं you. लुक फॉरवर्ड कि आपसे इन पर्सन भी मिल सके. जी डेफिनेटली, मैं डेफिनेटली मिलना चाहूंगा सर आपसे. जी सर, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच. नमस्कार.